तो इनसे जानने से पहले इनसे एक शपथ दिलवाई जाएगी ताकि जो भी ये बात बोले वो सच हो। तो आप सब रेडी हैं? यस मैम। जो भी बोलोगे सच बोलोगे? यस मैम। तो चलो, जो जो मैं बोलूँ आपको वो मेरे साथ बोलना है, ठीक है? अपना हैंड, राइट हैंड। तो मैम अगर मैं बात करूँ, जैसे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कितना इजी और कितना टफ होता है इनको डांस करवाना? Like I enjoyed with the small kids. It is, we are not saying it is easy or not a difficult, but if we are enjoying to teaching them, so it is easy for us, for the teachers also. Yes. So we can understand the concept well. So first they are saying take revision. So we are taking for 5 minutes. And the homework is very easy because we have understand the topic. 8 ईयर्स से इसी स्कूल में हो, तो कभी मन नहीं किया कि ग्लोबल जीडी गोयनका को छोड़ के किसी और स्कूल में मैं एडमिशन लूँ? No, ma'am. Basically, here teachers teach us with a very adorable manner, innovative skills. Basically, we can say a very dignified school. Here, teachers focus upon the 360 view of education, which is directly related to the modern education system. नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आज से कुछ दिन पहले इसी जगह पर जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल में 400 से अधिक अभिभावकों ने धावा बोला था। उनमें से कुछ अभिभावक आए थे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए, कुछ आए थे एडमिशन टेस्ट के लिए। उस वीडियो को 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था और देखा था। उसके जब हमने कमेंट्स पढ़े तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें बोला हुआ था कि अगर आप स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं तो स्कूल के बच्चों से बात कीजिए। और इसी वजह से आज हम दोबारा से जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल में आए हैं और आज हम बात करेंगे स्कूल के बच्चों से और जानते हैं स्कूल के अंदर की कुछ खास बातें। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आज हम बच्चों से बात करेंगे, तो अभी मेरे साथ जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेस के हैं। तो इनसे जानने से पहले इनसे एक शपथ दिलवाई जाएगी ताकि जो भी ये बात बोले वो सच हो। तो आप सब रेडी हैं? यस मैम। जो भी बोलोगे सच बोलोगे? यस मैम। तो चलो, जो जो मैं बोलूँ आपको वो मेरे साथ बोलना है, ठीक है? अपना हैंड, राइट हैंड। मैं शपथ लेती हूँ जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल के बारे में जो भी पूछा जाएगा वो सब सच बताऊंगी। तो भाई चलो, बच्चों ने तो शपथ ले ली है, तो अब देखते हैं कि कितना ये लोग सच बोलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे सुनने में आया है कि जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल का जो स्टडी पैटर्न है वो अदर स्कूल से डिफरेंट है, तो वो कैसे डिफरेंट है? Yes ma'am, actually here we have a European pattern of studies, and here the teachers teach us with different methods like flipping method of teaching, and there is group meeting also by which we study, and it's an interactive mode of study, so we enjoy it. ओके, जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि ग्रुप स्टडी क्या होता है, उसमें क्या अलग है? Group study is a method in which our teachers of our school divides all the students in different groups, and then we decide and we talk about a topic, and then after some time we talk about the topic in front of all the students and share our results and represent our what we think about that topic. फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट क्या है? In flipped classroom concept, the teacher gives us a topic in which we have to search about it at home from any sources like YouTube, Google or anything. We have to search about it and present it in the front of the class, which also makes us gain the confidence in front of many people, and also it helps us in the way of speaking and also many things. And also it's an interesting way of studying. जैसा कि अभी तक जो भी मैंने बात की, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे, सभी के जो आंसर्स है वो इंग्लिश में दिए जा रहे हैं। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर हिंदी बोलना अलाउड नहीं है? No, because according to today's generation, Hindi is also there. Like we are Indian, so we would speak Hindi. But according to today's generation, we need English is compulsory. Like today's generation need to speak English because if we have to go somewhere out, and English is also not merely learned by a school because our school's objective is to not merely learn but to acquire wisdom.
अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो किस तरह से आपकी और टीचर्स के आपस की जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से बनी हुई है? Every single teacher is very friendly out with her, and they teach with a very great method so that we can understand clearly, and we have a doubt so they clear very with the simple method so that we have no doubt till the end of the chapter. अगर मैं बात करूं जैसे कि अदर स्कूल्स में मोस्टली क्या होता है, अपने हरियाणा में रट्टाफिकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो क्या इस स्कूल में भी ऐसा कुछ है? No, ma'am, it's different from the traditional way. Over here, rot memorizes nothing. We have practical things to do so that we can learn that thing properly. For example, if we are talking about a cube in maths, so we bring yesterday ma'am tells us that we have to bring dice, so we bring dice and ma'am tells with that so that we can fit in that mind and we learn properly. काफ़ी हद तक तो हमें स्कूल के बारे में पता चल चुका है, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी बाकी है, उसके बाद वो भी क्लियर कर लेते हैं, बाकी बच्चों से भी बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रियल वर्ल्ड लर्निंग क्या होता है? Well, basically, real world learning is based on the real examples. Like our teachers give us real life examples so that we can understand the topic more clearly. ओके, और एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है वो क्या होता है? Ma'am gave us activity and we enjoyed it very happily, and ma'am help us to in doing that. एक वर्ड मैंने अभी सुना था जब मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, तो एक वर्ड यूज़ किया जा रहा था, स्पेलेथन। व्हाट इज़ स्पेलेथन? Ma'am, basically what happens in Spelathon, teachers assign us with 5 to 10 words based on chapters or external vocabularies, and every Friday we have a test. Basically teachers dictates the words, and this also improves our vocabulary, IQ level, sheer confidence basically. अगर मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो स्कूल के बाहर तो हमने देख लिया, बट क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन कैसा है? So, well, ma'am, as you know, discipline is very important. It's the key to success. So, in our schools, we have special discipline ministers who take care of the discipline, and they also help students with all their work. बेटा, टेल मी अबाउट DPSCP. Ma'am, the full form of DPSCP is Debate and Public Speaking Enhancement Program. In this, we had an online class with Anchor Kanishka Gola ma'am, who told us about debate and public speaking and improved our confidence. टेल मी अबाउट रीडिंग चैलेंज. So basically in reading challenge, we have to maintain a notebook, and in library period, we have to issue or read a book, and then we have to write a summary of it. And basically if we have to write the minutes also, if we have done 3000 minutes, so we will get a certificate. आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं बाकी बच्चों से पूछ चुकी हूँ, कुछ ऐसा कुछ अलग एक्सपीरियंस जो आपका स्कूल के साथ रहा हो? I have seen many activities like peer sharing, group learning, activity based learning, and many activities that are making our school very different from others, and it is very different for me because in last school I had only for studies and sports, but here I get many type of, like, we are getting overall development here. What is peer sharing? So in peer sharing, the teacher is making group of 2 students who are with different abilities. So they have to think about a topic which is given by the ma'am, and then they have to present the topic in front of our whole class. सभी बच्चों से तो हमने बात कर ली है, लेकिन ये एक ग्रुप है पूरा, तो मैं पर्सनल कुछ 2 या 3 बच्चों से बात करना चाहूँगी, उनसे भी जान लेते कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। एक आप आ जाइए मेरे साथ, और आप आ जाइए, और आप आ जाइए, ठीक है। तो अभी सिर्फ 3 बच्चे हैं मेरे साथ, इनसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर मैं आपसे पूछूँ, क्लासरूम में जो होमवर्क होता है उसका बर्डन बच्चों के ऊपर बहुत होता है, तो क्या GD गोयनका ग्लोबल स्कूल में भी ऐसा कुछ है? So as I told before that we are getting many activities. So now our teachers are telling us very basically from the starting, and they are providing us with the activities so we can understand the concept well. So first they are saying take revision. So we are taking for 5 minutes, and the homework is very easy because we have understand the topics, and we are having a special room for those who are not completing the work. But we are easily to complete. We are not having any burden because we are having so many facilities. We are getting activities, and the teachers are also so well. They are not strict. They believe in teaching well. भाई हमारे टाइम में क्या होता था कि जब हम स्कूल से घर आते थे 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक होमवर्क का इतना ज़्यादा बर्डन होता था कि पढ़ते रहो। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिफरेंट हो गई हैं। आज बच्चों के ऊपर स्टडीज़ का और होमवर्क का स्पेशली उतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहा। आप कितने टाइम से हो GD गोयनका ग्लोबल स्कूल? Since 8 years.
8 ईयर से इसी स्कूल में हो, तो कभी मन नहीं किया कि ग्लोबल जीडी गोयनका को छोड़ के किसी और स्कूल में मैं एडमिशन लूँ? No, ma'am. Basically, here teachers with a very adorable manner, innovative skills. Basically, we can say a very dignified school. Here, teachers focus upon the 360 view of education, which is directly related to the modern education system, which is also important for the understanding and growth of modern education system. Basically, here you can see all the arrangements are in European methodology. आपको कितना टाइम हुआ है स्कूल में? It has been 1 year. ओके, 1 ईयर से हो। इससे पहले किस स्कूल में थे? I was in St. Joseph. अगर मैं दोनों स्कूल में आपको बोलूँ कि थोड़ा सा मुझे डिफरेंस बताओ कि उस स्कूल के और इस स्कूल के स्टडी पैटर्न में क्या डिफरेंस है? So here I get many activities, I get many opportunities to represent myself, my confidence, what I have actually. Here I got the opportunity for representing as a public speaker, and also there was reading challenge, and even the school encouraged us by giving us shields and providing us different activities. So I would say this is the best school I have ever experienced. अगर ओवरऑल हिसार के स्कूल्स की बात करूँ तो जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल को 10 आउट ऑफ कितने दोगे? I think so 10 out of 10 because I enjoyed it, and I hope that my full journey of this education would go here. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बच्चों से हमने बात कर ली है, काफ़ी कुछ हमें स्कूल के बारे में पता चल चुका है, लेकिन ये तो हुई स्कूल की बातें। अभी रही स्कूल के बिल्डिंग की बात, तो अभी हम अंदर जाएंगे क्योंकि बाहर से स्कूल देखने में काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कितनी यहाँ पर सफाई है, क्या एक्चुअल में ही है। और दूसरी बात, अभी तो सिर्फ स्टडीज़ के बारे में पता चला है, जितना बच्चों ने बोला एक्टिविटीज़ के बारे में, तो वो भी अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर है और क्या अलग है, वो जानना अभी भी बाकी ही है। बाहर से ही हम देखते हुए आ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं बिल्डिंग के अंदर, जो मेन बिल्डिंग है स्कूल की। और आप देख सकते हो, अगर मैं सफाई की बात करूं तो वाकई में साफ़ सुथरा बिल्कुल यहाँ पर है और प्योर हाइजीनिक है यहाँ पर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीमारियों का खतरा बहुत बना रहता है। तो आप देख सकते हो पूरी की पूरी यहाँ पर सफाई है और दीवारें जो हैं, हर एक दीवार के ऊपर जो स्कूल के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे वो स्टडी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट हो, हर एक चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। Yes, now third step, cross. स्कूल में अगर स्टडीज़ की बात करूँ तो उसके ऊपर तो पूरा फोकस होता ही है, साथ के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना फोकस होता है वो भी हम जानेंगे। क्योंकि एक बच्चे के लिए सिर्फ एक पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं होता है, उसके अंदरूनी विकास के लिए उसका हर एक्टिविटी में आगे होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, हर एक एक्टिविटी में उसका आगे जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे अभी यहाँ पर डांस क्लास चल रही है। तो सबसे पहले तो बच्चों से बात करेंगे कि उनका कितना रुझान है, वो कितना खुश है डांस क्लास लगा करके। उसके बाद मैम से बात करेंगे कि वो किस पैटर्न पे काम करती है, किस तरह से वो इतने छोटे बच्चों को डांस करवाते हैं। तो चलिए पहले बच्चों से बात करते हैं। हेलो बेटा, आपको कैसा लग रहा है डांस क्लास में? वेरी नाइस। बहुत। और जो मैम करवा रहे हैं स्टेप्स, क्या आप इजीली समझ पा रहे हो उनको? यस मैम। ओके, तो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है मैम के साथ डांस करके? वेरी नाइस। वेरी नाइस। तो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप व्हाट इज़ योर नेम? कनव। ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th A। तो कनव, आपने अभी तक कितने सॉन्ग सीख लिए हैं मैम से? मैम अभी बहुत सारे सीख लिए। बहुत सारे। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मैम अच्छा, आपको कौन से सॉन्ग के ऊपर डांस करना बहुत अच्छा लगता है? मैम 3 पैग बलिए। 3 पैग बलिए, क्या बात है भाई, 3 पैग बलिए पे डांस करना इनको बहुत पसंद है कनव को। आपका क्या नाम है? माय नेम इज मैत्री। सॉरी? माय नेम इज मैत्री। ओके मैत्री, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 4th A। तो मैत्री, आप बताओ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आई कैन डांस ऑन एनी सॉन्ग। तो अभी जो मैम करवा रही है वो आपको अच्छे से समझ आता है? यस मैम।
चलो भाई, बच्चे तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी एक दो से और बात करके देखते हैं, उसके बाद मैम से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से इतने छोटे बच्चों को डांस करवाना उनके लिए इजी है या डिफ़िकल्ट है थोड़ा। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Vanya. ओके वान्या, which song is your favorite? My song is in Korean and it is BTS Butter Song. आई नो, BTS के फैन हो आप भी। ओके, तो फिर BTS सॉन्ग के ऊपर हमें डांस करके दिखाओगे? Okay. ओके, मैम जो करवा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है अच्छे से? Yes, ma'am. व्हाट इज़ योर नेम? Soumya. ओके सौम्या, टेल मी which song is your favorite? My favorite song is Shape of You. शेप ऑफ यू। ओके, और जो मैम आपको करवाती हैं डांस वो आपको अच्छे से समझ आता है? Yes. बच्चों से तो हमने बात कर ली, तो चलिए जो इन यहाँ के डांस टीचर हैं मैम, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। Ma'am, how are you? आप कैसे हैं? Yeah, I'm also good. My name is Pooja Soni. Yes. तो मैम अगर मैं बात करूँ, जैसे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कितना इजी और कितना टफ होता है इनको डांस करवाना? Like I enjoyed with the small kids. It is, we are not saying it is easy or not a difficult, but if we are enjoying to teaching them, so it is easy for us, for the teachers also. Yes. तो क्या प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते हैं बच्चे? Yeah, they are responding each and every time on each and every step, because I am teaching them with a very good technology. We are just playing, and in the during the playing we are just learning the steps also. तो क्या सीधा सॉन्ग प्ले करके डांस करवाते हैं या उससे पहले कोई अलग टेक्निक है आपकी? No, we are not मतलब starting playing the songs, because we are giving them a first footstep, counting 1, 2, 3, 4, and we are giving them a beat steps like 1, 2, 3, 4, and then they will understand the beats, and then they will do the own self on the music also. So we are doing a practice 2 times on the beats and 2 times on the songs also. तो आप तो सभी बच्चों की फेवरेट टीचर होगी, क्योंकि डांस टीचर बहुत फेवरेट होती है बच्चों की। I don't know, ma'am, that your students will tell you. और अभी हम पहुंचे हैं म्यूज़िक क्लासरूम में। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी क्लास चल रही है, सभी बच्चे और टीचर भी यहाँ पर है। तो आपको मैं पहले बताना चाहूँगी कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को अंदरूनी खुशी देता है, अगर वो किसी भी मूड में हो। लेकिन अगर अपना फेवरेट सॉन्ग या म्यूज़िक वो सुन ले तो अच्छे खासा जो मूड ऑफ होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो चलिए अभी यहाँ पर जो टीचर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं और पता करते हैं कि बच्चों को कौन कौन से म्यूज़िक सिखाया जाता है। तो आप देख सकते हो ये एक म्यूज़िक क्लासरूम है और मेरे चारों तरफ ही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, चाहे वो ड्रम हो, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो वायलिन हो। तो अभी हमारे साथ मैम है, इनसे भी जान लेते हैं। मैम मुझे ये बताइए कि बच्चों को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ पर सिखाते हैं? Hello, ma'am. Actually, we are teaching all instruments here, like a drum, guitar, Casio, piano, and all these things we are teaching them. For the small kids, you can see we are having a very small guitars. They will learn from there, because big one is not able to handle with them. And we are teaching them a little bit beats on the drum also for the small kids. And the grown-up students will drum beat very well. अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ तो कौन कौन सा म्यूज़िक इनको सिखाया जाता है? We are teaching them like Western music and classical music also. Classical and Western both for the senior classes, and the Western and rhymes music for the small kids. Yes. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम।
आप सभी के द्वारा पूछे गए सवालों के सच्चाई की तह तक जाने के लिए आज हम फिर से पहुंचे थे जीडी गोयनका ग्लोबल स्कूल में, और आज हमने सिर्फ यहाँ पर बच्चों से बात की और जाना जो स्कूल के बारे में बोला गया है वो सारी बातें किसी न किसी हद तक बिल्कुल सच हैं। तो जो भी बातें आपने पूछी थी, अगर इसके बावजूद भी ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई जिज्ञासा या सवाल रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। जितना प्यार आपने हमारी पुरानी पिछली वीडियो को दिया है उतना ही प्यार हमारी इस वीडियो को भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सोनिया ऐसी ही किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।